to start the recording. Okay, so for that guys, I need to create a file which is index.html. Okay, and first I need to generate a boilerplate code of Java of HTML, and we need to link it. So with the help of a script tag, we can link and src equal to, you can write here script.js. Take care. So now I'm clicking here. Okay, so if I'm writing here, for example, console.log, I'm just writing here JS, saving it. Hmm. Okay, so JS is printing here. Okay, so now we'll go to the inside JavaScript file. Okay, src.js. Okay, and here like we'll start with ECMAScript script feature. If I'm searching on Google, what is ES6 features of JavaScript? Okay, so let's see like what are the things is there on ES6 features of JavaScript. Okay. So first we'll start with let variable. Let variable let keyword you already know. Okay, in JavaScript, like we are using let keyword to create any particular variable. Previously, like ES6 Java ES6 feature, always we are using where keyword. Similarly, there is one more keyword which is part of ECMAScript 6 feature, which is const keyword. So with the help of const keyword, we can create any particular variable. And here like you are able to see मैं तो थोड़ा सा so right. So like previously like in arrow function, you are able to see we are writing functions like that, and still we can write this type of function, but after ECMAScript version, after ECMAScript 6 version, we are creating our method like that. So instead of creating any particular method, what we are doing over there, we are treating that like method name as a variable name. So we are writing over there const add, and we are passing argument over there a and b, and after that we are returning a plus b like that. Okay. Then the structure. So before going to the structure, just we'll go through one by one. Okay. My classes promises default. Okay. Okay. So let's try to understand what is the difference between let, where, and const keyword. Okay.
So each and every like keyword we are creating, we are using to create our variable. If I'm just copy this particular code and I'll go here and I'll paste it here. Okay. So what I'm creating here, I'm creating here one variable which is let n is equal to 10, and inside a block, after that we are written a block. Okay, in JavaScript if I'm written any particular thing inside a curly braces, and that is known as block. So in a block, what we are writing over there, we are creating a variable which is n is equal to 2. Okay, and we are printing here console.log n. So what is the output we are getting here? Just try to understand what is the output we'll get. So precisely this is the outer scope and this is the inner scope, okay, of that particular variable. So output must be 2 only. So what is the variable value here? 2. So what is the output here? 2. So 2 should be the output here. I know. So here like you are able to see first is printed 2 and after that it is printed 10. So this is a block level, that is the like local variable which we are written inside a block. For this reason it will printed 2, and this is the global block, global variable, and which is we are created n is equal to 10. So for this reason it will print here 10. Okay. So I hope you are able to understand कि when we written any particular code inside a block, है ना, एंड हमने जो पहले भी लिखा था जो वेरिएबल, उसमें दोनों में मेमोरी मिलेगी, like if I'm written any particular variable outside the block, so that is treat as a global variable. If I'm written any particular variable inside a block, that will treat as a local variable, है ना, ठीक है. Then here you already know when I talking about const keyword, है ना, तो const हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जब, है ना, तो उसमें कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते. अगर अपडेट करना चाहो तो एरर आएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग एनी पर्टिकुलर वेरिएबल कॉन्स्ट, लाइक प्राइस नाम का मुझे वेरिएबल बनाना है, ठीक है, एंड आई वांटेड टू असाइन लाइक 99.99 rupees like that. Okay, and I wanted to increase the price variable with the help of increment variable, है ना, ऐसे, and I wanted to print price again. Okay, the price को again print करना है, ठीक है. So if I'll go here, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, है ना, कि पहले से हमने जो वैल्यू असाइन किया था वो कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन किया था. फॉर दिस रीजन वी कांट इंक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू, है ना. सो हियर लाइक आई एम गोइंग टू राइट काउंट चेंज वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है. इफ यू आर चेंजिंग देन इट विल गिव यू एरर, ठीक है. What is the third thing? So already we'll go through these particular functions guys in previous classes, है ना. तो मैंने बारे में देखा भी था कि फंक्शन जैसे हम बनाते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ा था हमने, है ना, कि मान जाओ कि मुझे फंक्शन एडिशन नाम का फंक्शन बनाना है, तो मैं फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ऐड. इट विल रिसीव 2 आर्गुमेंट ए एंड बी, एंड इसको हम रिटर्न करेंगे ऐसे ए प्लस बी के साथ. ये हो गया हमारा एडिशन नाम का फंक्शन. अभी इसको न्यू फॉर्मेट में कैसे बनाना, तो न्यू फॉर्मेट में बनाने के लिए वी आर गोइंग टू राइट योर कॉस्ट सम, है ना. सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ क्योंकि दो एड के वेरिएबल नहीं बना सकते हम लोग, है ना. एंड व्हाट इट विल डू, इट विल रिसीव 2 आर्गुमेंट ए एंड बी लाइक दैट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट एरो की यहाँ पे लगाना है एंड दैट विल रिटर्न ए प्लस बी. तो पहले हम लोग फंक्शन ऐसे लिखते थे, है ना, अभी हम फंक्शन ऐसे लिखेंगे, है ना. दिस इज द प्रीवियस वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट. जो जावा स्क्रिप्ट के जो पुराना वर्जन था उस हिसाब से हम फंक्शन ऐसे लिखते थे. अभी हम फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे, है ना. सो देयर आर नो डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शन, है ना. पहले फंक्शन लिखना थोड़ा लंबा चौड़ा होता था, आप सिंगल लाइन के अंदर हम फंक्शन लिख सकेंगे. दिस इज द अनदर थिंग, थर्ड डिफरेंस. स्ट्रक्चर असाइनमेंट, तो मान जाओ कि ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, है ना, कि दिस इज द ऑब्जेक्ट. चलो तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं. लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दैट. कॉन्स्ट
एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इनसाइड द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट I wanted to assign the employee ID and employee name. So how we can assign it? है ना, यहाँ पे एक तो लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। So how we can assign it? So first we need to write a key value. So for example name, है ना, और name में हम assign करते हैं for example रोहन, ठीक है। and emp id, id ऐसे बनाते हैं, है ना, and we are going to assign for example this is the id, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कामा लगाना पड़ेगा हमें, है ना। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। इसी तरीके से मुझे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का सैलरी मुझे बनाना है ना। सैलरी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एंड इसमें असाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दैट 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। नाउ आई वांटेड टू राइट लाइक दैट कि अगर मैं इसे प्रिंट करूँ फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रिंटिंग दिस, कंसोल कराऊँ मैं इसे, console.log, ओके। एंड इफ आई एम राइटिंग टू द एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय का जो भी डाटा है वो हमें दिख रहा होगा, है ना। इस तरीके से एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, है ना। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ, इसको डिस्ट्रक्चर यूज़ करना चाहता हूँ, है ना। आई वॉन्टेड टू यूज़ योर डिस्ट्रक्चर, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, है ना। तो डिस्ट्रक्चर मैं कैसे यूज करूँगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो मैं करूँगा क्या, एक एरे बनाऊँगा, है ना। जैसे एक लिखूँगा इस तरह से कॉन्स्ट, और इसके अंदर इस तरीके से जितने भी वेरिएबल हैं फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, एम पी आई डी एंड सैलरी, है ना। और इसमें असाइन कर दूंगा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का हमारा क्या नाम है, एम्प्लॉय। सो आई एम गोइंग टू राइट अ एम्प्लॉय हियर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ console.log, ठीक है, नेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी भी हो जाएगा हमारा, और इसी तरीके से हमारी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। When I talking about employee guys, so in employee we are written over there three variables. First one name, name का name एक की है, इसका वैल्यू है रोहन। एम्प्लॉई एक आईडी एक की है, इसका वैल्यू है 2452, सैलरी है 50,000, है ना। तो होगा क्या कि जैसे हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, है ना, व्हेन आई डूइंग डिस्ट्रक्चर हियर, सो व्हाट इट विल हैपन, हमने तीन वेरिएबल यहाँ पे बनाया, नेम, एम्प्लॉई आईडी एंड सैलरी का, है ना। तो होगा क्या कि नेम नाम का जो वेरिएबल है ना, इसमें जो नेम नाम की की का उस वैल्यू था वो आ जाएगा नेम में, और एम्प्लॉय आईडी का जो वैल्यू है विच इज़ 2452, ये आ जाएगा यहाँ पे, एंड सैलरी नाम का जो वेरिएबल है ये आ जाएगा यहाँ पे। और हमने क्या कर लिया, तीन वेरिएबल बना लिया एक ही साइड में, और तीनों को वन बाई वन करके प्रिंट करा लिया। अब तीनों वेरिएबल वैल्यू को हमें हमें एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉय डॉट नेम नहीं यूज़ करना है, बिकॉज वी आर क्रिएटेड सेपरेटेड वेरिएबल्स, है ना, एंड वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल टू प्रिंट द वैल्यू, इस तरीके से। तो एम्प्लॉय का नेम रोहन, उसका आईडी, देन उसका सैलरी, इस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रक्चरिंग इन जावा स्क्रिप्ट, है ना, कि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग करते हैं एरे का भी डिस्ट्रक्चर, ठीक है। एरे में भी हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एरे बनाऊँ, है ना, लेट ARR, एंड आई वांटेड टू असाइन सम वेरिएबल वैल्यू, फॉर एग्जांपल कलर का नाम लिख देते हैं वाइट, ग्रीन, ठीक है, एंड ग्रीन के अलावा फॉर एग्जांपल रेड, एंड रेड के अलावा आई वांटेड टू असाइन हेल्थ। तो हमने एक एरे बनाया, एरे में चार एलिमेंट है हमारे पास, चारों एक स्ट्रिंग के एलिमेंट है, एंड इफ आई वांटेड टू कंसोल दैट पर्टिकुलर एरे, सो वी कैन कंसोल वेरी इजीली, वी कैन राइट हियर ARR एंड इट विल प्रिंट अ प्रॉपर एरे, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे हमारा वाइट है, फर्स्ट इंडेक्स पे ग्रीन है, सेकंड इंडेक्स पे रेड है, एंड
फोर्थ इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे येलो है, ठीक है। अगर मुझे डिस्ट्रक्चर कराना है इस पर्टिकुलर एरे को, तो मैं कैसे डिस्ट्रक्चर करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट नाम का एक वेरिएबल, इसके अंदर मुझे 4 वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। तो आई वांटेड टू राइट लाइक दैट, इसके पहले ये नाम का वेरिएबल बनाया नहीं ना, ठीक है, नहीं बनाया क्या, फाइन, ठीक है। सो आई वांटेड टू राइट योर 4 वेरिएबल ए बी सी एंड डी, है ना। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा ARR, है ना। इधर इसको ARR से हटा के कलर लिख देते हैं, कलर्स, दैट विल बी वेरी ठीक। अब मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अभी मैं इफ आई वांटेड टू प्रिंट, इफ आई वांटेड टू प्रिंट हियर सी को मैं प्रिंट कराना चाहूँगा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी के जगह पे है हमारा रेड, तो रेड असाइन हो गया हमारे सी नाम के वेरिएबल में। इसी तरीके से डी में क्या असाइन हो गया, तो डी में असाइन हो गया हमारा येलो, है ना। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट वाइट, तो वाइट असाइन हो गया हमारे ए नाम के वेरिएबल में। तो अगर मैं ए को प्रिंट करूँ तो क्या आउटपुट आएगा, वाइट, है ना। लेट्स ट्राई टू प्रिंट हियर ए एंड यू आर एबल टू सी द आउटपुट स्क्रीन। इस तरह आ रहा है, एरे इज नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी गॉट इट। सो हम यहाँ पे एरे को प्रिंट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वाला वी नीड टू प्रिंट कलर्स, सेव इट। तो अभी हम जैसे ही उसको प्रिंट करा, तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा वैल्यू है विच इज़ वाइट, एंड वाइट असाइन हो गया हमारे किस में, ए नाम के वेरिएबल में, है ना। और उसे ही हम कर रहे हैं प्रिंट, ठीक है। इसी तरीके से इफ आई वांटेड टू प्रिंट हियर बी, है ना, अगर मुझे बी को प्रिंट करना है ना, ठीक है। अगर मुझे बी को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली इफ आई वांटेड टू प्रिंट बी, सो हाउ वी कैन प्रिंट बी हियर, है ना। अगर मैं बी को प्रिंट करूँ, है ना, तो हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू, Excuse me, Abhishek sir. Actually, I need 2 minutes. या ओके या Hello everyone. Hello. आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. हेलो सर। Good यस evening. सर। Yes, sir. एक बार आप लोग हैंड रेज कर दो, कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं, कितने लोग नहीं हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूँ बस। मनी, दीपक, मनवीर, आर यू देयर इन द मीटिंग? ओके, जसम, ठीक है, सब मीटिंग में है। चलो बढ़िया, काफ़ी लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं। तो मैं बेसिकली आपको कुछ बताना चाह रहा था कि जो भी हमारा टायरन LMS जो प्लेटफॉर्म है, अभी मेरी स्क्रीन में आपको दिख रही होगी। आपको बेसिकली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है TIIRON.com। ये लिंक आपको ग्रुप में गया होगा, वहाँ से इस पे जाना है प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। प्लेटफॉर्म पे जब आप लॉगिन करोगे तो गूगल कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपना अकाउंट जो भी अपनी ईमेल आईडी दिया हुआ है उनको, तो उससे आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ कोर्सेज में आप इनरोल होगे। लाइक वो कोर्स हो सकता है आपका, यहाँ से स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री में जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको सब लिस्ट हो जाएगा। आप डेटा एनालिटिक्स वाला कोर्स भी कर रहे हो और फ्रंट एंड कर रहे हो, तो फ्रंट एंड में चले जाओ और यहाँ पे जितने भी आपको प्रैक्टिस करने के वीडियो मिल रहा है या फिर क्वेश्चंस वगैरह, वो आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो। जब वो प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो आपको एक यहाँ पे सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, ये इंटरनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। तभी वो जनरेट होगा जब आपने वहाँ पे सारे MCQ कोडिंग क्वेश्चन वीडियोज़ वगैरह देख लिया एक बार, तब जाके ये जनरेट होगा ये। और तभी ये जाके प्रीव्यू जो है, अभी लॉक दिख रहा है, ये अनलॉक होगा उस टाइम पे। तो आपको ये कंप्लीट करना है प्रैक्टिस में जाके। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह अभी जितने नहीं बने हुए हैं वो बन जाएंगे कुछ टाइम पे क्वेश्चंस यहाँ पे, तो आपको वो सब प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ से रेटिंग भी करनी है, यहाँ पे कोर्सेज में जाके रेट करना है। कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कोर्स के बारे में। तो वो चीज़
बताने का मेरा मोटिव यही है कि बस ये प्लेटफॉर्म पे जाना है आपको, सारे कोर्सेज को एक्सेस करना है, क्विज़ेस को करना है, असाइनमेंट है तो इसको करना है, ठीक। और इसके बाद नोट्स वगैरह पढ़ना चाहो तो आपके ऊपर है। और इसके बाद यहाँ पे रेट कर सकते हो आप, रेट जो है रेटिंग करना है आपको। जब ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे, सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा और उसको आप डाउनलोड करके कॉलेज में या जहाँ पे भी देना चाहो आपको दे सकते हो। तो ये काम हो गया। इसके अलावा जो गूगल फॉर्म है आपका, जो ग्रुप में शेयर किया था, उसमें आप लोग अपने जो भी रिव्यूज़ वगैरह फीडबैक है आप शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करके देना चाहता है, वीडियो फीडबैक देना चाहता है कि उसको कैसा लगा वीडियो, मतलब क्लास अटेंड करके इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, वो बना के भेज सकता है। वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो कोई वीडियो बना के भेजता है तो। बाकी ये कोर्स कुछ टाइम में पेड हो जाएगा, तो बाकी आप लोगों के लिए तो फ्री ही रहेगा जब आप लोग इनरोल कर लिया है तो यही दो चीज़ सर बतानी थी मेरे को। सर तो वीडियो भी देखना पड़ेगा। वीडियो आपके ऊपर है, आप बेसिकली क्या करना ना, वीडियो को ड्रैग कर देना है। जैसे स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री में गए, यहाँ पे अपना फ्रंट एंड चूज़ किया, देखना नहीं पड़ेगा बेसिकली, आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। जैसे वीडियो है तो इसको एक बार प्ले किया, जब यहाँ पे आप प्ले करोगे तो इसको बस ड्रैग करके यहाँ तक आपको ले आना है। जब यहाँ तक ले आओगे लास्ट तक, तो इसको प्ले कर देना, तो ये ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये मार्क इस कंप्लीटेड में चला जाएगा। तो बस ये काम करना है आपको, वीडियो देखना नहीं, क्योंकि क्लास तो आपने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। यस सर। हाँ, और उसके अलावा आप इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब वगैरह करना चाहो तो वो सब भी कर सकते हो। बाकी कोर्स को रेट करना और फीडबैक देना, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आया हूँ आपको बताने कि ठीक है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका रिपोर्ट वगैरह है जो ये जनरेट हो पाए। ये रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ जो इन अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप आके यहाँ नीचे देख सकते हो कि कैसा दिखेगा रिपोर्ट। यहाँ पे तो इंटर्नशिप आपको लेटर चला गया है, इसके बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ये रिपोर्ट बेसिकली वहाँ से जनरेट होगा, और ये तभी जनरेट होगा जब आपने सारे काम कर लिए वहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, ये लेटर ऑफ अप्रिशिएशन कुछ ही को मिलेगा जो थोड़ा बेटर है, रिस्पॉन्ड अच्छा किया है, उसके बेसिस पे मिलेगा। बाकी 3-4 चीज़ें हैं सब मिल जाएंगी। चलो फिर ठीक है, यही बताना था मेरे को। बाकी आप लोग क्लास करो, ठीक है अभिषेक सर, थैंक यू। एंड आप लोग क्लास अच्छे से करो, बढ़िया से पढ़ो फ्रंट एंड, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ओके सर। कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay. ओके सर। Okay, guys. So let me the continue from that. Acha, I hope like you're able to see my screen, right? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, ठीक है। चलो, अभी फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पे था कि लाइक मैंने एक यहाँ पे एरे बनाया, दैट एरे नेम इज कलर्स, है ना। और उसमें मैंने एरे में 4 एलिमेंट असाइन करे, है ना। एंड चारों कलर्स का नाम है, वाइट, ग्रीन, रेड एंड येलो, है ना। और उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं लिखता हूँ डिस्ट्रक्चर क्या होता है ना। ठीक है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो हम पहले इसको लाइक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो दैट इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। एंड यहाँ पे है ये एरे का पार्ट, है ना। एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए हमने 4 वेरिएबल यहाँ पे बनाए हैं, A, B, C एंड D, है ना। तो इन चारों वेरिएबल्स को अगर मैं प्रिंट करूँ 1 बाई 1 करके, A, B, C एंड D, तो जब मैं A को प्रिंट करूँ यहाँ पे, है ना, A को प्रिंट करने पे वाइट आ रहा है। इसी तरीके से इफ़ आई वांटेड टू प्रिंट D, है ना, तो मैं D को प्रिंट करना चाहूँ उस तरीके से, है ना। तो D के जगह पे क्या आएगा, चौथी जगह पे हमारे यहाँ पे है येलो, तो येलो असाइन हो गया हमारे D के अंदर, D नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हम D को कर सकते हैं एक्सेस। इसी तरीके से जो रेड है, रेड जो वैल्यू है वो असाइन हो गया हमारा C के अंदर, है ना। और जो ग्रीन है, ग्रीन असाइन हो गया हमारा B के अंदर। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, है ना। तो हम जो भी
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग, तो एरे को भी इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करके एक ही साथ उसको अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल टू कैलकुलेट सम ऑफ द वैल्यू, और कोई भी रिस्पॉन्स में लगाना है या फिर कहीं पर पास करना पैरामीटर के अंदर. सो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट, है ना. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रक्चरिंग कितना इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में. जब आप प्रोडक्शन पे काम करोगे कई कई कंपनीज़ के अंदर, तो वहाँ पे रिएक्ट में काम करते हैं मोस्टली लोग, तो रिएक्ट में भी हम हर जगह डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करते ही करते हैं, है ना, है ना. ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रक्चरिंग. ऐसे ही डिस्ट्रक्चरिंग के बाद होता है स्प्रेड ऑपरेटर, है ना. जैसे स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे मान जाओ एक हमने एरे बनाया, लेट ARR, है ना. यहाँ पे जाते हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो गया. हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर, है ना. जैसे मान लो कि एक स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपेंड द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द इंडिविजुअल एलिमेंट और प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो एक N1 नाम का एरे है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट असाइन हुए हैं, है ना. और एक वेरिएबल है दैट नेम इज़ N2, एंड उसमें क्या किया जा रहा है, इस तरीके से ट्रिपल डॉट यूज़ कर रहा है, ट्रिपल डॉट एंड N1, एंड उसके बाद 4 5 इस तरीके से ऐड कर दिया गया है. तो जो N2 में प्रिंट होगा वैल्यू, वो कैसे प्रिंट होगा, पहले तो प्रिंट होगा 1 2 3 एंड आफ्टर दैट 4 एंड 5, है ना. तो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा जब N2 को हम प्रिंट करेंगे, 1 2 3 ये जो तो तीनों एलिमेंट है ये ऑटोमेटिक मर्ज हो गए विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग, है ना. सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ये N2 में आ गए हैं, और N1 प्लस N2 मर्ज होके उसके बाद प्रिंट हो गए सारे वैल्यू, है ना. तो ठीक है, इसी को मैं बनाना चाहता हूँ. आज जाओ कि एक एरे बनाते हैं ARR1 में हम असाइन करते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3. ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं. देन एक एरे 2 बनाते हैं हम ARR2, एंड यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ यूज़ स्प्रेड ऑपरेटर. तो स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट से यूज करते हैं, तो ट्रिपल डॉट ऐसे यूज करेंगे. फिर यहाँ पे लिखेंगे ARR1 कमा 4 कमा 5. ये हमने करा यूज. इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, है ना. तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक एरे बनाया था ARR1, उसमें 3 एलिमेंट असाइन किए थे. अब ARR2 मैंने सेकेंड एरे बनाया, इसमें सबसे पहले मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, और डिस्ट्रक्चर करने के बाद 4 एंड 5 ऐड कर रहा हूँ, है ना. अगर मैं इसे ARR2 को प्रिंट करूँगा, है ना, इफ आई वांटेड टू प्रिंट ARR2, देखो आउटपुट देखते हैं. आउटपुट यहाँ पे आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5. यानी हुआ क्या कि जो पहले हमारा 1 2 3 था, ये विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर इट इज मर्ज टू द एरे 2 में कॉपी हो गया सारे एलिमेंट, एंड आफ्टर दैट 4 5 को हम उसमें ऐड कर पा रहे हैं, है ना. तो हमें ना एरे के मेथड को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हमें 1 बाई 1 करके एलिमेंट कॉपी करना है, ना 2 एरे को मर्ज करना है ना. जैसे मान लो कि अगर मैं सेम कोड अगर C लैंग्वेज या फिर C++ कोड में लिख रहा होता, तो मुझे करना क्या होता कि एक अलग एरे बनाना होता, दोनों के साइज़ को ऐड करके. फॉर एग्जांपल इसका साइज़ 3 है, इसका साइज़ 2 है, तो मुझे 5 साइज़ का एक एरे बनाना होता, और 5 साइज़ के एरे में पहले एरे 1 को मैं इंसर्ट करता, और एरे 1 के बाद एरे 2 को इंसर्ट करता 1 बाई 1 एलिमेंट. तो दोनों एरे को मर्ज करना पड़ता, मर्ज करने के बाद मुझे आउटपुट आता. लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये काम बहुत ईजी हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर. हम कर क्या रहे हैं, जस्ट वी आर यूजिंग 3 डॉट and our array variable our variable name, and after that which you wanted to insert, you wanted to add any particular thing, can add, है ना. तो बहुत ईजिली हम ये काम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर. अगर स्प्रेड ऑपरेटर में कोई किसी को डाउट है यार, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, दैट इज नोन एज स्प्रेड ऑपरेटर. यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से स्प्रेड हेलो ऑपरेटर. या सर, जो आप अपने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग करवाई है, ये रियल एप्लीकेशन में मतलब कहाँ पे यूज होगी? फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास MongoDB के जो स्कीमा होते हैं, है ना. MongoDB जब हम डाटाबेस यूज करते हैं Node.js Express.js के साथ में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि Node.js और लाइक होता क्या है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमारे पास डाटा होता है MongoDB में, है ना.
तो जो ऑब्जेक्ट के रूप में डाटा होता है तो उस डाटा को हमें डिस्ट्रक्चर करना होता है या फिर उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है ना। दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर यूजिंग डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर, है ना, रियल टाइम में। ठीक है, एनी अदर डाउट एनीवन? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, है ना। तो स्प्रेड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना। बहुत ईजिली हम स्प्रेड कर पा रहे हैं चीज़ों को, और इसके पहले हमने डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में देखा था, है ना। एंड ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। इसके अलावा एक लूप होता है, दैट लूप नेम इज फॉर ऑफ लूप। जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे या फिर सी प्लस प्लस पढ़ेंगे या फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें होता क्या है, सी सी प्लस प्लस एंड जावा लैंग्वेज में हमारे पास 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वो तीनों लूप हमारे अंदर, हमारे जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर होते ही होते हैं। उसके अलावा एक और जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, एक और लूप हमारे पास देती है, दैट नेम इज फॉर ऑफ लूप। तो होता क्या है कि एक एरे आपको दिया गया इस तरीके से, और इस एरे को 1 बाई 1 करके एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर इस तरह लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ, सबसे पहले तो कीवर्ड लिखूंगा लेट कॉन्स्ट और वैर, एंड आफ्टर दैट फ्रूट ऑफ ए, और या फिर आई इन ऑफ ए, और यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट फ्रूट को। तो करेगा क्या, फ्रूट में 1 बाई 1 एलिमेंट असाइन हो जाएंगे। सबसे पहले 0 इंडेक्स वाला वैल्यू असाइन हो जाएगा, देन आफ्टर दैट फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू असाइन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट सेकेंड इंडेक्स वाला वैल्यू असाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है ना, एंड इस एरे में मुझे फॉर ऑफ लगाना है। तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, सबसे पहले फॉर लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कलर ऑफ। देखो सबसे पहले वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ता है, मतलब और डाटा टाइप हमें लिखना पड़ता है। तो आइदर वी कैन यूज़ कॉन्स्ट, आइदर वी कैन यूज़ वैर, आइदर वी कैन यूज़ लेट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड कलर ऑफ, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा और एरे नेम। सो व्हाट इज एरे नेम हियर, एरे नेम इज हियर इज ए। सो हमारे पास क्या एरे नेम है, कलर्स, एंड तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर्स। ठीक है, या फिर इफ़ यू वांट यू कैन राइट हियर आई ऑफ कलर्स, और यहाँ पे प्रिंट कर दो ईच एंड एवरी एलिमेंट पे, कंसोल लॉक करा लो आई, है ना। इससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे एलिमेंट 1 बाई 1 करके प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले वाइट प्रिंट हो रहा है, देन ग्रीन, देन रेड एंड येलो, है ना। ठीक है, तो आई मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हम हमेशा आई ही यूज़ कर रहे होते हैं। आई इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू नेम एन आई प्लस प्लस। फॉर दिस रीजन आई एम राइटिंग आई. I is just variable name. Instead of writing I, you can write a colors as well. You can write Y as well. You can write any particular variable name, है ना। So हम यहाँ पे for of लगा रहे हैं। तो for of लगाने से एक चीज़ फ़ायदा ये होता है कि हमें बिना कोई कंडीशन लगे, बिना कोई कंपैरिजन करे, हम पूरे एरे को आइटरेट कर सकते हैं, है ना। पूरा लाइक ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर सकते हैं, है ना, बिना कोई कंडीशन लगे वहाँ कुछ किए। बट लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट वाइल लूप और टू वाइल लूप और फॉर लूप, तो वहाँ पे लिखना होता है हमें कंडीशन कि i इक्वल टू 0, आई लेस दैन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। सो जो बीच में कंडीशन हम रख रहे होते हैं, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इट विल एक्चुअली वर्क। बट हियर वी आर नॉट राइटिंग एनी पर्टिकुलर कंडीशन, जस्ट वी आर राइटिंग ऑफ कॉन्स्ट आई ऑफ कलर्स, है ना। यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं, तो मान जाओ कि ऐसे लिख सकते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल और कलर्स, आई के जगह वेरिएबल। ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दैट। सो दिस इज नोन एज फॉर ऑफ लूप, है ना। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं, है ना। तो आइट्रेट एनी पर्टिकुलर थिंग, वहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करते हैं फॉर लूप और डू वाइल और वाइल लूप।
इसी तरीके से लेट्स ट्राई टू कंबाइन और कंबाइन लाइक दिस फॉर ऑफ लूप एंड इसके अलावा एक होता है रेस्ट ऑपरेटर, जैसे हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर कर रहे हैं। स्प्रेड बोले तो एरे को मतलब अलग अलग हिस्सों में मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, उसी तरीके से रेस्ट ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो रेस्ट ऑपरेटर में हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, जैसे मान लो कि एक मेथड मैं बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन ऐसे बनाऊंगा, फंक्शन, है ना। इट विल द फंक्शन नेम इज, फंक्शन नेम कुछ बनाया हमने, सम नाम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे सम की जगह पे वन कर देते हैं और यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाते हैं। मान लो कि एक सम नाम का मुझे फंक्शन बनाना है, इट विल टेक वन आर्गूमेंट, है ना। आर्गूमेंट क्या लेगा, तो सबसे पहले तो ये इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर लिखेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर्स, ठीक है। और हम पास कैसे करेंगे इसमें वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे सम लिखूँगा और कम से कम 4 एलिमेंट पास करूँगा, 10, 20, 40 एंड 40, है ना। मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट वैल्यू पास कर रहा हूँ, 4 वेरिएबल वैल्यू विच इज़ 10, 20, 30 एंड 40, एक एरे के तरीके से पास कर रहा हूँ, है ना। और ये रिसीव क्या करेगा, रिसीव यहाँ पे 4 वेरिएबल नहीं कर रहा है, रिसीव यहाँ पे एक तरीके से रेस्ट ऑपरेटर कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे 3 डॉट कर रहे हैं और उसके बाद नंबर्स का यूज कर रहे हैं, तो नंबर एक एरे बन जाएगा और एरे में पूरा इस तरीके से हमने ट्रिपल डॉट लिख के उसके बाद नंबर लिखा है, तो नंबर नाम के एरे में सारे वेरिएबल वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग, है ना, और यहाँ पे मैं लिखूँ नंबर्स, है ना, सो यू आर एबल टू सी हमारे पास जो आउटपुट आएगा एक एरे के रूप में आ रहा है, 10, 20, 30 एंड 40। इसका लेंथ है 4 और ये एरे का प्रोटोटाइप है इसका एरे, है ना। तो ये बन जा रहा है एरे, जैसे हम वैल्यू को इस तरीके से पास कर रहे हैं। अगर चाहो आप तो यहाँ पे फॉर ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, तो प्रिंट 1/m एलिमेंट, तो क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो फॉर ऑफ का अगर यूज़ करना है आपको, सो यू कैन यूज़ फॉर लूप, यू कैन राइट हियर। सबसे पहले हमारा डाटा टाइप टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नम और नंबर्स, ठीक है। एंड आई कैन प्रिंट हियर, मैं लॉग करूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखूँगा नम। तो ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी आइटरेशन पे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा आउटपुट होगा 10 होगा, then 20, then 30, then 40 एंड सब न्यू लाइन पे होगा, बिकॉज कंसोल डॉट लॉग हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन दे देता है। यहाँ पे न्यू लाइन में सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज़ नोन एज रेस्ट ऑपरेटर, है ना। और ये हो गया हमारा फॉर ऑफ लूप, ठीक है। Still, if you have any particular doubt guys in this rest operator, spread operator, either the structure, so you can ask questions. And if you don't have any particular question, then we'll move to the next topic. ठीक है, इसके बाद गाइस हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ नोन एज स्ट्रिंग लेटरल, है ना। स्ट्रिंग लेटरल मैंने एक दिन बताया भी था, है ना। स्ट्रिंग लेटरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे नीचे दिया था टेम्पलेट लेटरल और कैंसिल स्ट्रिंग लेटरल। तो स्ट्रिंग लेटरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पाइथन लैंग्वेज पढ़ा हुआ, तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट नेम इज एफ स्ट्रिंग, है ना। तो एफ स्ट्रिंग में करते क्या, हम एफ लिखते हैं, उसके बाद सब वैल्यू लिखते हैं डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, है ना। एंड वहाँ पे लिख लेते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू लिखते थे तो वैल्यू प्रिंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर एफ स्ट्रिंग मुझे यूज करना होगा जावा स्क्रिप्ट में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ स्ट्रिंग लेटरल। तो ये जो देख पा रहे हो आप कैरेक्टर, इसको बोलते हैं बैक टिक, इसको बोलते हैं बैक टिक। और बैक टिक होता है स्केप की के नीचे, जो स्केप बटन होता है हमारे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर, स्केप बटन की के नीचे एक होता है, उसको बोलते हैं हम बैक टिक, है ना। अच्छा मान जाओ सबसे पहले आप
टेक्स्ट बिफोर, इस तरीके से हो गया स्ट्रिंग, टेक्स्ट आफ्टर ये भी हो गया स्ट्रिंग, है ना। और जो वेरिएबल था, है ना, वो वेरिएबल को लिख सकते हैं हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर और उसके बाहर हम लगा देंगे यहाँ पे डॉलर। सो दैट इज नोन एज बैकटिक, है ना। जैसे मान जाओ कि इस एग्जांपल को लेते हैं, है ना, इस ऐसे ही लिखते हैं एक एग्जांपल। सो आई वांटेड टू क्रिएट अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10, है ना, एंड y इक्वल टू 20, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, दोनों को सम करना चाहते हैं, है ना। तो मैं कैसे सम करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग x प्लस वाई इनसाइड इट, हम करेंगे यूज यहाँ पे बैकटिक का, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सम ऑफ, अब मुझे x का वैल्यू यहाँ पे लिखना है ना। x का वैल्यू मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकटिक, सॉरी डॉलर, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं x का वैल्यू लिखूँगा एंड डॉलर, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा y का वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ x एंड y इच, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दोनों का सम। वो कैसे करूँगा मैं, इसके अंदर लिखूँगा x प्लस वाई ऐसा, और मैं इसे सेव करूँ तो हमारे पास आएगा वैल्यू क्या, सम ऑफ x का वैल्यू क्या है 10, तो सम ऑफ 10 एंड y का वैल्यू क्या है 20 इज 30। इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। तो यू आर एबल टू सी सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ठीक। सो दैट इज नोन एज स्ट्रिंग लिटरल, है ना, और टेम्पलेट लिटरल, है ना। जो भी बोलो आप, स्ट्रिंग लिटरल बोलो, टेम्पलेट लिटरल बोलो, इट्स योर चॉइस, है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान जाओ कि कोई एक सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस के अंदर आप यू वांटेड टू अपेंड एनी पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू, सो दैट इज़ पॉसिबल, वेरी इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसी सेम चीज़ को आप जो पहले का वर्जन था, पहले का जो जावास्क्रिप्ट वर्जन था उसके अंदर आप करना चाहो तो कैसे करोगे, तब ये चीज़ नहीं चलेगा हमारे यहाँ, इसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना, और सबको पूरा स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, एंड सम ऑफ, और फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे आप, इसको रिमूव करोगे, फिर यहाँ पे प्लस, देन यहाँ पे प्लस, देन एंड को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना पड़ेगा, देन यहाँ पे भी प्लस आप लिखोगे, देन यहाँ पे भी प्लस लिखोगे, देन इसको अलग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर यहाँ पे आप प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पे प्लस, इसको इस तरीके से। इसमें भी थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, एंड के बाद स्पेस, और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस, इसके बाद स्पेस, देन ईच के बाद थोड़ा सा स्पेस। सम करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखो पहले जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन था, है ना, ES 6 के पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, है ना। तो इसमें बहुत चीज़ें दिक्कत हो रही है, जैसे बार बार मुझे प्लस लिखना पड़ रहा है, स्पेसेस भी देखना पड़ रहा है, सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, राइट, है ना। ये प्रीवियस वर्जन था, प्रीवियस ओल्ड वर्जन था जावास्क्रिप्ट का, वहाँ पे हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। अभी जो है जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, है ना। इफ यू वांटेड टू राइट अ सेंटेंस जिसमें वेरिएबल भी हो, स्ट्रिंग भी हो और सब कुछ हो, ऐसे हम लिखते हैं, है ना। सो इट इज़ वेरी यूनिक थिंग, है ना। एंड पाइथन में भी ऐसे ही है, सिमिलर दैट नोन एज एफ स्ट्रिंग, है ना, एफ स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज, यहाँ पे दिख रहा होगा टेम्पलेट लिटरल्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। सो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि लाइक ब्लॉक में स्कोप कैसे काम करता है, ग्लोबल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप कैसे होता है ना। देन हमने कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में देखा, देन विल सी लाइक हाउ वी कैन राइट आवर मेथड, प्रीवियस वर्जन मेथड एंड ES 6 वर्जन मेथड,
देन विल सी द डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट, एंड डिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमने एरे के साथ में डिस्ट्रक्चर किया, उसके पहले हमने ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, ठीक है। देन हमने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में देखा, व्हाट इज द स्प्रेड ऑपरेटर एंड हाउ इट्स एक्चुअल वर्क। देन विल गो थ्रू द रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर कैसे होता है, कैसे काम करता है, गो टू द रेस्ट ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट हमने देखा है टेम्पलेट लिटरल के बारे में। तो टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, कैसे काम करता है ना, यू हैव ऑलरेडी गो थ्रू। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना, तभी लिखना आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन राइट, इफ आई आस्क टू यू कि कैन यू राइट अ स्ट्रिंग लिटरल और टेम्पलेट लिटरल लाइक दैट, so might be in the initial phase you are facing issues, but when you practice near about 30 to 1 hour on the same thing, so you can write that particular code. इसके अलावा लाइक इन जावा स्क्रिप्ट गाइज वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, है ना। तो मैप में भी हम की वैल्यू पेयर के रूप में डाटा को स्टोर करा सकते हैं, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के रूप में डाटा को स्टोर कराते थे, है ना। बट मैप में थोड़ा सा ये तरीका अलग होता है ना। मैप में होता क्या है कि जैसे ही मैप में आप कोई भी की वैल्यू पेयर के रूप में डाटा स्टोर कराओ, तो उसमें हमेशा यूनिक वैल्यू बोल रहा हूँ, मैप में की वैल्यू पेयर डाटा स्टोर होता है एनी टाइप का। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट में जैसे हम स्टोर होता था, तो ऑब्जेक्ट में हम करते क्या था, तो ऑब्जेक्ट में हम 1 बाई 1 करके एलिमेंट को स्टोर कराते थे ऐसे, है ना, की वैल्यू पेयर लाइक। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मैप, है ना। मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग अ सेट मेथड टू इंसर्ट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, और किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए यानी प्रिंट करने के लिए वी आर यूजिंग अ गेट मेथड, है ना। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको मैप यूज़ करना है, ठीक है, सबसे पहले करोगे क्या कि कॉन्स्ट मैप बनाओगे, मैप इक्वल टू न्यू एंड मैप नाम का एक मेथड होता है विच इज मैप, ठीक है, ठीक है। अब करोगे क्या, इंसर्ट करोगे एक एक एलिमेंट को, तो सेट इंसर्ट करने के लिए सेट करना पड़ेगा मैप डॉट सेट। सबसे पहले की वैल्यू की आप इंसर्ट करो और उसके बाद वैल्यू, की के बाद वैल्यू। तो की कभी भी इंसर्ट करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं की डालता हूँ, सेम इम्प्लाई वाला ही डाल देते हैं। तो मान लो कि मैं नेम डालता हूँ और इसके अंदर वैल्यू मान लो कि डालता हूँ सोहन, ठीक है। इसके बाद मैप डॉट सेट, वी कैन सेट एंड empid एम्प्लॉई आईडी, और इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल इस इंटीजर में होगा, तो इस तरीके से इंटीजर डाल दें। मैप डॉट सेट एंड सैलरी होगा हमारा ऐसे, और 50,000, ठीक। इस तरीके से हम मैप बनाते हैं। और किसी भी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूँगा, सो वी कैन यूज़ दिस मेथड, दैट मेथड नेम इज गेट, है ना। तो मैं यूज़ करूँगा मैप डॉट गेट एंड इसके अंदर की को पास कर देंगे हम, जैसे की को पास करेंगे सो विल गेट अ आउटपुट। तो मैं अगर लॉग करूँ यहाँ पे, सो मैप डॉट की, मान जो कि इम्प्लाई आईडी मुझे प्रिंट करना है, IMP ID यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। सॉरी, पहले तो मैं गेट लिखना पड़ेगा, तो मैप डॉट गेट एंड इसके अंदर मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर IMP ID लिखना पड़ेगा, ठीक है। रन इट एंड यू आर एबल टू सी हियर इट इज प्रिंटेड इम्प्लाई ID, एंड इसी तरीके से इम्प्लाई का नेम प्रिंट करना है, ठीक है। तो just put it over there, instead of employee ID just put it over there name and let you print the name, so ठीक। तो ये होता है मैप। ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होता है चीज़ों में मैप में जिसमें, बट लाइक
when I creating any particular object, so always we are writing a manually one by one thing, है ना. और यहाँ पे हम मेथड का यूज करते हैं तो सेट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट एनकेट के. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप. मैप के बाद एक और होता है चीज़, दैट नेम इज सेट. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि एरे में कुछ एलिमेंट को स्टोर कराओ, है ना. तो एरे में कोई एलिमेंट को स्टोर कराओ तो वो स्टोर होता है ऐसे ही कुछ भी, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इफ़ यू वांटेड टू राइट 1 10 टाइम और 15 टाइम तो सब कुछ स्टोर हो जाएगा. बट जो सेट होता है, सेट में हमेशा हमारा यूनिक वैल्यू स्टोर होता है ना. सो लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन क्रिएट सेट. ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, मैं कॉन्स्ट सेट बनाता हूँ जैसे, है ना. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू देन सेट. ठीक है, और इसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट स्टोर करना है. फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 एंड 1. अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ, लॉक करना चाहूँ, लॉक एंड आई वांटेड टू लॉक सेट वेरिएबल हियर. अभी आउटपुट हमारा क्या आएगा, द आउटपुट यू आर एबल टू सी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी. अच्छा सॉरी, आई नीड टू राइट इनसाइड दैट. अभी मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो सेट के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, एक प्रिंट हो रहा है बस. कह रहा है कि हमारे सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1. तो फिर जो कभी भी सेट हमारा क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है ना. 1 कितना भी लिख लो, जब इसको प्रिंट करोगे तो आउटपुट आएगा 1 होगा. अभी मैं इसको प्रिंट करूँ तो आएगा आउटपुट इसका 1 एंड 4. ठीक है, 4 हमें भले ही हमने 3 बार लिखा है लेकिन आउटपुट क्या आएगा, 1 2 बार लिखा है लेकिन आउटपुट 1 आएगा 1 टाइम एंड 4 आएगा 1 टाइम, है ना. लाइक दैट 1 एंड 4. तो सेट हमेशा क्या करता है, सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है ना, इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अब देखते हैं हम कॉल बैक फंक्शन के बारे में, है ना. कॉल बैक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में. कॉल बैक फंक्शन होता क्या है कि जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉल बैक फंक्शन, है ना. तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं देख के बताऊँ आपको. कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, तो मान लो कि मुझे एक फंक्शन बनाना है. ठीक है, दैट फंक्शन नेम इज मैसेज. ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, फंक्शन इसका नाम है हमारा मैसेज. जो करेगा क्या, जस्ट मैसेज प्रिंट कराएगा. करेगा क्या, लॉक कर देते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट. ठीक, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल मैसेज हमने लिखा. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है जो कि करे क्या कि इस फंक्शन को रिसीव करे एज एन आर्गूमेंट में, है ना. कैसे रिसीव करेगा, कैसे फंक्शन बनाएंगे, तो एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, है ना. जिसका फंक्शन फॉर एग्जांपल ग्रीट बना लेते हैं, ग्रीट नाम का फंक्शन. ठीक है, जो करेगा क्या, क्या आर्गूमेंट लेगा, इस फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट मिलेगा, है ना. तो सबसे पहले तो एक नेम बना लेते हैं, नेम नाम का वेरिएबल वैल्यू कुछ पास कर देंगे इधर, एंड कॉल बैक यहाँ पे लिख देंगे, कॉल बैक. कॉल बैक स्मॉल में होता है थोड़ा इस तरह से. तो मैं करूँगा क्या, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा फॉर एग्जाम्पल हेलो एंड जो नेम है नेम को प्रिंट कर देते हैं.
इसके बाद कॉल बैक फंक्शन को कर देते हैं कॉल इस तरीके से। एंड इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इस ग्रीट वाले फंक्शन को? तो ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा नीचे, है ना। एंड हमें लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रीट एंड फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल शुभम, ठीक है। एंड उसके बाद कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन रिसीव करेगा। तो मैसेज नाम का जो फंक्शन है हमारे पास, उसी मैसेज को हम कर देते हैं पास, ठीक है। करते हैं सेव। कैसे आएगा, सबसे पहले हमने एक मैसेज नाम का फंक्शन बनाया था जो कि प्रिंट करेगा क्या, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट। तो हम कर रहे हैं ग्रीट को कॉल। जैसे ग्रीट को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमने सोहम नाम का एक नेम भेजा, तो नेम हमारा असाइन हो जाएगा सोहम में, है ना। तो सोहम असाइन हो जाएगा हमारे नेम में। एंड उसके बाद मैसेज फंक्शन को कर ले कॉल, तो ये हो जाएगा कॉल बैक में असाइन। तो उसके बाद इसका आउटपुट आना चाहिए console.log हेलो एंड नेम, तो हेलो सोहम आना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इट विल कॉल टू द कॉल बैक फंक्शन, यानी जो हमारा मैसेज फंक्शन है उसको कॉल करेगा। तो सबसे पहले आएगा हेलो सोहम एंड उसके नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसको रन करूँ तो आ रहा है हेलो सोहम एंड वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से आ रहा है। सो दैट इज नोन एज कॉल बैक फंक्शन। इसका डेफिनेशन कैसे होता है कि when we can pass any particular function as a argument inside a function, that is known as callback function. कि फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं एज एन आर्गूमेंट, है ना। ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है एग्जिस्ट करती है ना, जिसमें हम फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन भी पास कर रहे होते हैं, बट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इट इज़ पॉसिबल। सर एक बार रिपीट करा देना कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको हटाता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है मैसेज, एंड ये कर क्या रहा है कि जस्ट इट विल प्रिंट console.log वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। और मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे एक फंक्शन बनाना है ऐसा जो कि एक फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट के रूप में रिसीव करे, है ना। तो मान लो कि एक मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, हाँ, जिसका फंक्शन का नाम है ग्रीट, जो करेगा क्या, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव दिस नेम फ्रॉम हियर, है ना। रिमूव करना है तो कर सकते हो बट इट इज़ फाइन, है ना। तो हमने एक फंक्शन बनाया है और इसी फंक्शन को मुझे पास करना है एज एन आर्गूमेंट किस फंक्शन के अंदर, ग्रीट फंक्शन के अंदर। तो ग्रीट जो फंक्शन है हमारा दो आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है, पहला हो गया हमारा नेम और दूसरा हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन, है ना। तो जो कॉल बैक कीवर्ड है, कॉल बैक जब कभी भी फंक्शन रिसीव करता है एक फंक्शन को, तो वहाँ पे हम कॉल बैक लिखते हैं, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखते, कॉल बैक लिखते हैं, है ना। यहाँ पे हमने लिखा कॉल बैक और उसके बाद हमने नॉर्मल प्रिंट किया हेलो, और उसके बाद जो नेम वैल्यू हो जाएगा वो नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने इस वाले फंक्शन को यानी मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने किया क्या, कॉल बैक यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये कॉल किसको करेगा, मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। और कैसे कॉल करेंगे इसको, तो कॉल करने के लिए हम लोग इस वाले मेथड को कॉल करेंगे यानी ग्रीट नाम के मेथड, है ना। तो ग्रीट को कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GRWT, है ना। और यहाँ पे हम सबसे पहले नेम पास करेंगे, तो किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल अरविंद, ठीक है। अरविंद नाम पास कर दिया, जो कि जहाँ पे जाएगा तो जो कि जाएगा नेम नाम के वेरिएबल में, वहाँ पे असाइन हो जाएगा। एंड उसके बाद हम एक फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास एक और मौजूद है जिसका नाम है मैसेज, इसको आर्गुमेंट के रूप में पास कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले अरविंद यहाँ पे जाएगा नेम में असाइन हो जाएगा अरविंद, और मैसेज जाएगा जो कि कॉल बैक में असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो अरविंद। एंड आफ्टर दैट कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो कॉल बैक फंक्शन जब कॉल होगा तो किस फंक्शन को कॉल करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस मैसेज, जो कि हम यहाँ पे पास कर रहे थे मैसेज, तो इसको प्रिंट करेगा, है ना। तो पहले होगा हेलो अरविंद एंड आफ्टर दैट दिस लाइन इट विल प्रिंट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से।
ओके सर। So this is known as callback function. ठीक है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आप देखोगे वहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओनली विच यू आर एबल टू सी कॉल बैक फंक्शन कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. And even though like when you are attending any particular front end development interview or company's interview, so they will ask you what is callback and can you explain like how it's work, and if it is possible can you write a code of it and explain it what is callback to us. So you need to write a proper code for that and you need to explain it as well. When function receive any particular argument as a function, that is known as callback function. And you can write this particular example or any other example if you want. अब होता है कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं इन जावा स्क्रिप्ट. देर आर सम ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शन, है ना. कैसे लिखते हैं? HIGHER, हायर ऑर्डर फंक्शन. ठीक है, सो हायर ऑर्डर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार इन जावा स्क्रिप्ट में, है ना. हर जगह हायर ऑर्डर फंक्शन आप देखोगे ही जब आप जावा स्क्रिप्ट में कोड करोगे, है ना. अभी मैंने जावा स्क्रिप्ट में जितना पोर्शन कंप्लीट किया है, इट्स जस्ट 10% ऑफ जावा स्क्रिप्ट गाइस, है ना. इट्स ओनली जस्ट 10%. हमने इतना जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया जावास्क्रिप्ट में, बट अभी बस 10% ही जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया. जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी वास्ट लैंग्वेज, वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड जावास्क्रिप्ट को कवर करना इन 1 मंथ इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. तभी भी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है इन जावास्क्रिप्ट. सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट गाइस, सो हायर ऑर्डर फंक्शन इट्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन which is take as an argument as another function, as well as it will return as a any particular function as an argument, है ना. So those function which will take any particular function as an argument and it will return any particular function as an argument, that is known as higher order function, है ना. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के, है ना. जैसे अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट फंक्शन हमारा होता है मैप. तो मैप नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन की कैटेगरी में आता है, जो कि हम यूज करते हैं हमेशा. उसी तरीके से एक और फंक्शन होता है दैट नेम इज़ फिल्टर. फिल्टर को भी हम यूज करते हैं. सिमिलरली देयर इज वन मोर मेथड दैट नेम इज रेड्यूज. रेड्यूज को भी हम यूज करते हैं. एंड उसके बाद एक और मेथड होता है दैट नेम इज फॉरेज. ठीक है, तो ये 4 मेथड होते हैं जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं. इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि एक एरे बनाता हूँ, है ना. और मान जाओ कि एक एरे बना लेते हैं. कॉस्ट इस तरीके से हमने एरे बनाया. इसमें अंदर कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ऐसे 1 2 3 4. और मुझे क्या कराना है, मुझे सारे एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लूप यूज़ करूँ, नॉर्मल लूप यूज़ करूँ, तो करेगा क्या, मैं फॉर लूप लगाऊंगा और जो भी आई आता है, मतलब ईच एंड एवरी आइटरेशन को आइटरेट करूँगा. जहाँ पे आई आता है आई इंटू आई मैं असाइन कर दूँगा आई, इस तरीके से. तो होगा क्या, अभी थर्ड वेरिएबल बना लेंगे, है ना, और आई में असाइन कर देंगे आई इंटू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू. तो उससे क्या होगा कि स्क्वायर हो जाएगा. या फिर दूसरा एक एरे बना लेंगे और उसमें इसका एरे का स्क्वायर रूट हम असाइन कर लेंगे. बट यहाँ पे हम दूसरा कोई एरे नहीं बनाते हैं. व्हेन आई टॉकिंग अबाउट दिस, हम करते क्या हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे. एक हम वेरिएबल बनाएंगे दैट विल वर्क, दैट विल जनरली लाइक असाइन सम ऑफ द वैल्यू, है ना. तो मान लो कि स्क्वायर नाम का हमने वेरिएबल बनाया SQUAR. ये क्या करेगा कि जितने भी स्क्वायर होंगे सारे एलिमेंट के सब स्टोर करेगा, है ना. अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर्स
सॉरी नंबर्स की जगह पे लिखूँगा मैं एरे, हमारा एरे हमने बनाया है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैप, है ना, यहाँ पे लिखा मैंने मैप, ठीक है। मैप के अंदर मैं बनाऊँगा एक फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा विच इज नम, ठीक है, और नम कुछ रिटर्न करेगा। कैसे क्या रिटर्न करेगा ये, इट विल रिटर्न नम इंटू नम, ठीक है। तो काम कैसे कर रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा ये वेरिएबल वैल्यू है विच इज़ 1, ये असाइन हो जा रहा है नम नाम के एलिमेंट में, है ना, और नम इंटू नम यानी 1 इंटू 1 ये जाके स्क्वायर रूट में असाइन हो गया। देन नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 इंटू 2 हुआ, है ना, और स्क्वायर रूट में जाके असाइन हो गया। देन 3 इंटू 3 हुआ और स्क्वायर में जाके असाइन हो गया। देन 4 इंटू 4 हुआ और स्क्वायर में जाके असाइन हो गया। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, लॉक कराऊँ और यहाँ पे लिखूँ मैं स्क्वायर और मैं इसे सेव करूँ, एंड यू आर एबल टू सी आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 1, 4, 9 एंड 16 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और वही हमारे पास प्रिंट हो रहा है ना। सो दैट इज हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ मैप, ठीक है। इस तरीके से हम मैप यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा नए फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। जैसे ये तो पुराना फॉर्मेट हो गया, फंक्शन हम लिख रहे हैं, देन यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, फिर रिटर्न कीवर्ड लिख रहे हैं। इसको आप चाहो तो सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो, है ना। कोई बताएगा कैसे लिख सकते हो, एनीवन? एनीवन? ठीक है, अगर नहीं पता है सो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे एरे लिखा है, एरे डॉट मैप, है ना, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ और जस्ट कॉपी इट एंड कमेंट इट आउट, है ना। और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेम चीज़, है ना। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को रिमूव कर सकता हूँ इस तरीके से, फंक्शन कीवर्ड को लिखने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है ना। और यहाँ पे हम 2 नम लिख रहे हैं, है ना, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, है ना। और जो ये चीज़ें हम लिख रहे हैं इसको भी हम पूरा रिमूव कर देते हैं, है ना। और नम में मैं इक्वल कर दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एरो और यहाँ पे लिखूँगा नम स्टार, दैट्स इट एंड वी आर एबल टू कंप्लीट इट, है ना। तो ये था जावास्क्रिप्ट का थोड़ा पुराना वर्जन और ये हो गया हमारा नया वर्जन। तो हम सिंगल लाइन ऑफ कोड में हम उसका आउटपुट निकाल पा रहे हैं, है ना, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का मैप यूज करते हैं, है ना। ये तो हो गया मैप का एग्जांपल। अगर मान जाओ मैं ऐसे ही कहूँ कि मैप की जगह पे अब हमें ये यूज करना है, यानी फ़िल्टर यूज करना है ना। फ़िल्टर यूज करना है। फ़िल्टर हम कैसे यूज करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ़िल्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है ना, यही एरे लेते हैं, अलग से एरे नहीं बनाते हैं, है ना। और मैं लिखना चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट इसमें सम है ना, वो प्रिंट हो जाए। जो भी एलिमेंट यहाँ पे सम है वो प्रिंट हो जाए, है ना। मतलब इवन जो भी नंबर है यहाँ पे, है ना, वो प्रिंट हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट इवन नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा और एरे डॉट
और मैं यहाँ पे लिखूँगा फिल्टर मेथड, है ना, फिल्टर मेथड, और मैं इसमें असाइन कर दूँगा जो नम है हमारा एरो फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा नम mod 2 इक्वल टू 0। दैट्स इट, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट इवन। तो मैं यहाँ पे लॉक करा लूँगा और इवन को करूँगा प्रिंट, एंड सेव इट, एंड विल गो, यू विल सी हियर इट विल प्रिंट इवन नंबर ओनली, है ना। तो मैप की मदद से हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट में अगर कोई, सारे जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारे एरे के अंदर, सारे एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैप। एंड इफ यू वांटेड टू फिल्टर any particular thing in the array, so you can filter with the help of filter method, है ना। अगर आपको for loop यूज करना है, so that is easy, but it will take too much time to filter any particular thing, and is with the help, if you are using filter method, filter higher order method, higher order function, so your task will be complete within a minute, or within 30 second or 40 second of time you are complete the entire code, है ना। So that is known as filter। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, ये फिल्टर वाला सर आपने क्या बताया था, एक बार रिपीट करेंगे? ठीक है, ठीक है। सो मैं सर वैसे अगर इसमें हम फिल्टर यूज नहीं करें तो इवन नंबर आई थिंक शायद वैसे भी सर प्रिंट हो सकते हैं वैसे। ठीक है, या वाई नॉट, अगर आप फॉर लूप यूज करते हो तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप यू कैन प्रिंट इवन नंबर वेरी इजीली, है ना। बट होता क्या है कि जब आप वो कोड लिखोगे ना, जैसे आप फॉर लूप लिखोगे, पूरा एरे को आइट्रेट करोगे, आइट्रेट करने के बाद एक एक एलिमेंट को, इवन नंबर को प्रिंट करोगे, तो इट विल टेक टू मच टाइम, एंड टू मच बिग कोड इज ऑल्सो लाइक यू आर गोइंग टू राइट, राइट। तो हमें वो नहीं करना है, हमें इतना लंबा कोड नहीं लिखना है, राइट। वी नीड टू राइट वेरी शॉर्टर कोड, है ना। For this reason what we are doing here, we are writing a filter higher order method। तो हम करने के, हमने करा क्या कहा है, मैंने लिखा है एरे, यानी इस वाले एरे को मुझे फिल्टर करना है, और क्या फिल्टर करना है, जितने भी इवन नंबर है वो अलग हो जाएं, मतलब प्रिंट हो जाएं। तो मैंने करा क्या है, एरे डॉट फिल्टर, देन वी आर पासिंग ओवर दियर नम, एंड वी आर डिवाइडिंग नम mod 2 इक्वल 0, है ना। एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं इवन नंबर को, इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग इवन। तो जितने भी इवन नंबर हैं वो इवन नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे, एंड आई कैन क्रिएट अ एरे, एंड वी आर प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर एरे लाइक दैट, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू एड अ ऑड नंबर भी बहुत ईजिली कर सकते हो, है ना। ऑड नंबर के लिए यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दो, है ना, और यहाँ पे लिख लो ऑड, एंड यू कैन प्रिंट हियर ऑड, and just save it and go that particular place, and you are able to see odd number is printed, ठीक है। अगर ऐसा भी आपको कंडीशन लगाना है, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स विच इज़ लेस दैन 10 और लेस दैन 2, तो ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हो। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, है ना, इट विल प्रिंट नंबर। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे कुछ लगाना है, सो व्हाट आई कैन डू, नम इज ग्रेटर दैन 2, है ना, यानी 2 से जितने भी बड़े एलिमेंट हैं वो प्रिंट हो जाए, है ना। 2 से बड़े एलिमेंट हमारे पास 3 और 4 हैं, वो दोनों प्रिंट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 से जितने भी छोटे हैं और उसके बराबर हैं जितने भी एलिमेंट, वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 and 2, है ना। तो जस्ट यू नीड टू पुट अ कंडीशन एंड यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग, है ना। आई नॉट इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, सो दैट विल गेट अ ऑड नंबर, सॉरी नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, नम mod 2 नॉट इक्वल टू 0। ऐसे क्या होगा, हमारे पास नम 2 प्रिंट हो, मतलब जितने भी ऑड नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ फिल्टर मेथड। अब देखते हैं, मान जाओ कि हम
फॉर एग्जांपल इस एरे में ही थोड़ा सा कुछ और एलिमेंट स्टोर करते हैं, या फिर इसको 20 कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 30, इसको कर देता हूँ -4 और इसको कर देता हूँ मैं 100, या फिर मैं कर देता हूँ 70। ठीक है, अभी थोड़ा यूनिक एरे हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू फाइंड अ मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरे। तो मैक्सिमम एरे एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, हम सबसे पहले लूप लगाते हैं, वी विल गो ईच एंड एवरी आइट्रेशन, है ना, एंड मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें अपडेट कर रहे होते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट को, है ना। लेकिन व्हेन आई टॉकिंग अबाउट दिस गाइस, रिड्यूस नाम का जो यहाँ पे मेथड होता है, हायर ऑर्डर मेथड, इसका हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूँगा क्या, मुझे मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्स, है ना, मैक्स नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर मुझे फाइंड आउट करना है इन दिस पर्टिकुलर एरे। मैं क्या करूँगा, एरे लिखूँगा यहाँ पे, है ना, एरे डॉट, देयर इज वन मेथड दैट नेम इज रिड्यूस, यहाँ पे देख भी सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा था रिड्यूस, आई एम गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड रिड्यूस। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रही थी, है ना, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, है ना, लाइक ए एंड बी। ठीक है, तो एक्चुअली कंपेयर करेगा 2 एलिमेंट को, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, we can return, what we can return, if a is greater than b, ठीक है, then we can return a, otherwise we can return b, this is like that। and अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ console.log और मैं यहाँ पे लिखूँ मैक्स नंबर, ठीक है, और सेव करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा विच इज 70, विच इज प्रिंटेड, या यहाँ पे 70 है। अगर मैं इसको बढ़ा के 200 करता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 200। अगर इसको मैं कम करके यहाँ पे बढ़ाता हूँ 130 और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे 130 अपडेट हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस। अगर आप और चाहते हो थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना फोटो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, और नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर ए इज नॉट डिफाइंड, हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, so with the help of reduce method what we are doing, we are comparing one to another element, है ना। अगर मुझे कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। और कभी भी हमारा जो रिड्यूस मेथड होता है 2 आर्गुमेंट लेता है, जैसे इसके पहले मैप के बारे में देखा, तो मैप हमारा 1 आर्गुमेंट लेता था, फिल्टर भी हमारा 1 आर्गुमेंट लेता है, बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट रिड्यूस इट विल टेक 2 आर्गुमेंट। इसके बाद there is one method which is last method which is pending guys, that is known as for each। तो मान जो कि एक एरे को मुझे आइट्रेट कराना है, तो हमने बहुत सारे लूप देखे हैं ना, डू वाइल, फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, इसी तरीके से होता है फॉर ईच। बहुत लोग फॉर ईच को मेथड बोलते हैं, बहुत लोग फॉर ईच को लूप बोलते हैं, है ना, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ हायर ऑर्डर मेथड, तो हम ऐसे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा एरे है, इस एरे को मुझे आइट्रेट करना है, वी वांटेड टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा एरे ARRAY डॉट फॉर ईच, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर ईच। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करूँगा एक आई नाम के वेरिएबल को। ठीक है, आई नाम के वेरिएबल को इसके अंदर पास करूँगा, और सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन ऐसे। ठीक है, आई, और फिर मैं क्या करूँगा, इसके नीचे जाके ऐसे अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ console.log और यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट आई।
तो ये होगा क्या कि सारे एलिमेंट जितने भी होंगे एरे के वो प्रिंट हो जाएंगे 130 70 20 सॉरी ये तो 130 तो पहले से था 70 20 130 और -4। इस तरीके से हम एरे को आइट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच मेथड। अच्छा ये ऐसे भी काम कर रहा है क्या? जस्ट ट्राई टू सी। सिंगल लाइन में भी हम लिख पा रहे हैं क्या इसे? सिंगल लाइन में लिखने के लिए नीड टू रिमूव दिस दिस एज वेल। कर पा रहे हैं, सो दैट इज गुड। जस्ट ट्राई टू रिमूव इट, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम फॉर ईच को सिंगल लाइन में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो 4 हमने हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़े गाइस। चारों में जस्ट आई गो थ्रू वन बाय वन अगेन। तो मैप मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इफ़ आई वांटेड टू गो ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड उसमें कुछ चेंजेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ मैप, सो वी कैन परफॉर्म द changes operation with the help of map. For example, we have an entire array and I wanted to filter some of the values, or if you wanted to use filter option, so we can do the filtration and all with the help of filter. Then when I talking about reduce guys, and reduce generally like take 2 argument, है ना? So if you wanted to compare one element to another element, है ना? So that is possible with the help of reduce. And last one which is for each. So for each if you wanted to iterate entire loop, entire array, so that is possible with the help of for each method, है ना? तो यार हमने जावास्क्रिप्ट में आज बहुत ज़्यादा कुछ कंप्लीट कर लिया, है ना? मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ, है ना? एंड जस्ट गो थ्रू द ईच एंड एवरी कोड बेस, ईच एंड एवरी थिंग, ट्राई टू प्रिपेयर, ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड टुमारो विल सी सम इम्पोर्टेंट थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट विच इज़ पेंडिंग, है ना? मैं कोड को पुश कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दैट इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ES6। इस वाले फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट ES6 का। ठीक है guys, so now it's updated. Now we can wrap up the session, है ना? And we'll connect tomorrow and we'll discuss some more important topics in JavaScript. चलो, ओके सर।